Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today in this video we will discuss your next topic, which is nothing but the relativistic total energy of any moving particle in terms of the linear momentum. Okay, in the last lecture we have discussed about the relativistic kinetic energy and total energy and rest mass energy. Okay, this video is special for the condition when we apply relativistic case or Newtonian mechanics and photonic case. Okay, so now we start this video. Okay, this class. So today's topic is relation between या ऐसे कह दीजिए रिलेटिविस्टिक टोटल एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम relation between relativistic total energy and linear momentum. और करके हम ऐसा भी कह सकते हैं इस टॉपिक को, रिलेटिविस्टिक या ऐसे कह दीजिए एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल in terms of linear momentum in relativistic case, okay. So we know that यहां पर देखिएगा रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक टोटल मतलब आपेक्षीय कुल ऊर्जा रेखीय संवेग के पदों में हमें यहां पर निकालना रिलेशन. वी नो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल in relativistic case, ठीक है ना. we know that the total energy of a moving particle in relativistic case in terms of dynamic mass, गतिज द्रव्यमान बताया गया होगा आपको m की, यहां पर रेस्ट मास और गतिज द्रव्यमान आपका अलग अलग होता है, ठीक है ना. तो देखिए E इक्वल्स टू mc square, this is equation number first, and we know that the dynamic mass of the moving particle is given by m naught divided by under root या square root minus v square upon c square. So implies that E equals to m naught c square is divided by square root of 1 minus v square by c square. Okay, and
linear momentum P equals to dynamic mass into velocity v, where m is nothing but m naught divided by square root of 1 minus v square by c square and multiply by v. Now first of all we will try to calculate e square minus p square and multiply by c square, and also this term is very special. After this topic we will discuss about this term, okay, which is very interesting. Now here is nothing but m naught c square divided by square root of 1 minus v square by c square to the power 2 minus p square is nothing but m naught v divided by square root of 1 minus v square by c square to the power 2 and multiply by c square. Now here we get m naught square c to the power 4 divided by 1 minus v square by c square minus m naught v square c square 1 minus v square by c square. Here we can take common the term m naught square c square, okay, or c to the power 4 also divided by 1 minus v square by c square. Then we get here is 1 and minus v square by c square. This term can be cancelled out by this term, so implies that e square minus p square multiplied by c square is equal to m naught square c to the power 4. So e square is nothing but p square c square plus m naught square into c to the power 4. So e will be equals to square root of p square c square plus m naught square into c to the power 4, which is the required expression for the relativistic total energy of any moving particle in terms of the linear momentum and rest mass energy of that particle, okay. और ये रिलेशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस रिजल्ट से हम उस कंडीशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिस कंडीशन पे हम ये बता सकते हैं कि कब हम कौन सी मैकेनिक सप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर आप देखें इन दो टर्म्स को आप यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए, पी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4. This is nothing but the square of the rest mass energy, and this is nothing but the square of the kinetic energy of a photon. Actually, you will be see after some simplifications also. So there are 3 special cases okay. Now so see here this formula distinguish, this formula is special because
because it tells us how can we distinguish between relativity या relativistic mechanics and Newtonian mechanics. There are three special cases. There are three special cases. Case first. If, see here, if, देखिए यहां पर एक बात और समझिए, एम नॉट इज द रेस्ट मास. ओके, ये पार्टिकल क्या है, रेस्ट मास है. और यहां पर एक चीज और देखिए कि डायनेमिक मास एम in terms of rest mass is nothing but m naught divided by under root 1 minus v square by c square. If the velocity of the particle is is smaller than the speed of light, then this term will be negligible and then m will be equals to m naught. Okay, so in that case the rest mass will be the dynamic mass of the moving particle will be same as the rest mass which is we considered in the Newtonian mechanics. So here see, this is the rest mass. Okay, if PC is very less than m naught c square, then what will be happen? If PC is very less than m naught c square, then if PC is very less than m naught c square, in that case we can neglect PC. We can neglect PC with respect to m naught square c to the power 4. Then in this case will be equals to m naught c square. Okay, m naught c square. तो उस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि ये टर्म आपके इसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है. तो आप देखिएगा c से c आप कैंसिल आउट करेंगे तो p will be less than m naught c, and then p is nothing but mv is less than m naught c, and v is in the denominator of this term, then m will be very less than m naught c upon v. Okay, c upon v. Okay, so see here very clearly, m will be in denominator, c कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहां पर आप देखेंगे m नॉट एम v इधर डिवाइड में जाएगा तो m नॉट c बाय v. ओके, सो यू कैन सी हेयर दिस टर्म कि जो आपका लीनियर मोमेंटम होगा वो इसके मोमेंटम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा. ठीक है ना. तो उस केस में हम क्या करते हैं, देन वी अप्लाई न्यूटोनियन मैकेनिक्स.
न्यूटोनियन मैकेनिक्स. ओके. केस सेकंड, if P is closer to the m naught c square, then we can neglect any term in this relation. आपको भी थोड़ा डाउट हो भी रहा होगा कि यहाँ पर हम न्यूटन मैकेनिक्स कैसे अप्लाई करेंगे कि डोमिनेंट टर्म यहाँ पर एम नॉट सी स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में न्यूटन ही क्यों अप्लाई होगी. आप देखिए इसके बाद जो केस आने वाला है स्पेशल, उससे आपको पता चलेगा कैसे हम करेंगे. जो थर्ड केस होगा वो काफ़ी स्पेशल है, उसे एक्चुअल में आपको पता चलेगा जनरली. तो इस केस में आपको दोनों टर्म आपकी डोमिनेंट होगी, तो ये आपका प्योर क्या हो जाएगा, प्योर नहीं कह सकते, रिलेटिविस्टिक केस हो जाएगा. देन वी अप्लाई रिलेटिविस्टिक. आपने यदि क्वांटम मैकेनिक्स में बोहर मॉडल किया होगा, श्रोडिंजर बोहर मॉडल और जो श्रोडिंजर इक्वेशन से या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की होगी, तो जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम करते हैं, तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती है, तो सबसे पहले हमें ट्राई करते हैं कि जो मोमेंटम वहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन का दिया गया है, क्या वो मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास से ज़्यादा है या कम है. यदि उसका मोमेंटम रेस्ट मास एनर्जी से कम है, यानी कि पीसी की वैल्यू उसके रेस्ट मास एनर्जी से कम है, तो उस केस में हम सिंपल अपने न्यूटन मैकेनिक्स वहाँ पर अप्लाई करते हैं. अदरवाइज यदि उसका लीनियर मोमेंटम यानी कि पीसी वाली टर्म उसकी रेस्ट मास एनर्जी के कंपेरेबल आती है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर हम रिलेटिविस्टिक केस अप्लाई करके चलते हैं. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रोवाइड की जाती है, और उस कंडीशन में जब उसका जो मोमेंटम होता है वो नॉन रिलेटिविस्टिक केस की कंडीशन में आता है. बट जब हम बात करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट की, तो कॉम्पटन इफेक्ट में जब हम पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, तो वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, और उस कंडीशन में उसका जो मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का कॉम्पटन इफेक्ट में, वो उसका मोमेंटम के कोरस्पॉन्डिंग जो उसकी पीसी एनर्जी होती है वो उसकी रेस्ट मास एनर्जी से काफ़ी अधिक होती है, जिसके कारण उस कंडीशन में हम रिलेटिविस्टिक केस अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट. ये यहाँ पर एक डिफरेंस हुआ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स. ठीक है ना. अब आता है स्पेशल केस, केस थर्ड, जो जिसमें आपने देखा होगा कि जब क्वांटम मैकेनिक्स के स्टार्ट करते हैं वेव थ्योरी की, तो वहाँ पर आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ाई जाती है, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में आपने देखा होगा कि जो आपका पार्टिकल कंसेप्ट है वेव कंसेप्ट के साथ कंसीडर किया जाता है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पार्टिकल कंसेप्ट कैसे आपके वेव कंसेप्ट के साथ यहाँ पर आपका कनेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स. ओके, सो इन दिस केस इफ PC is very larger than m naught c square, then what will happen? जरा देखिए, E will be equals to corresponding to PC, because in that case the dominant term will be PC. We can neglect m naught c square. That means in that case we can consider this term is 0 with respect to this term, and this expression you can see here. If we write here for simplicity, here after simplification, P is nothing but mv. Okay, P is nothing but mv. Okay, क्लियर है ना. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि मैं यहाँ पर E की जगह फोटोन की एनर्जी पुट कर दूं h न्यू, देन विल बी इक्वल्स टू PC. तो यहाँ पर आप देखें न्यू इज नथिंग बट न्यू बाय सी लैम्डा पी सी एच. तो यहाँ से सी से सी कैंसिल आउट हो जाए, लैम्डा दिस विल बी एच सॉरी पी सी बाय लैम्डा, एंड देन पी विल बी इक्वल सॉरी लैम्डा विल बी इक्वल्स टू एच अपॉन पी.
ये तो रिलेशन पढ़ते हैं। तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि हम फोटोन के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं वो होता है इक्वल्स टू पीसी, क्योंकि फोटोन के पास उसकी रेस्ट मास कितना होता है 0। तो यदि फोटोन के पास रेस्ट मास 0 है देन दिस फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू पीसी। दैट मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ पीसी इज वेरी वेरी लार्जर देन एम नॉट सी स्क्वायर देन दिस विल बी इक्वल्स टू पीसी। दैट विल बी इन दिस केस द आपका जो मोशन है, जब मैकेनिक्स है, वो प्योर रिलेटिविस्टिक कंडीशन में पहुंच जाती है, यानी फोटोनिक कंडीशन में वो आपकी चली जाती है। तो फोटोनिक कंडीशन में जब आपकी जाएगी तो यानी कि वो रेडिएशन की एनर्जी को क्या करेगी, डिफाइन करेगी, और रेडिएशन के पास आपका स्पीड होगी बट मोमेंटम नहीं होता। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है बट डायनेमिक मास नॉन जीरो होता है, इसलिए उसके पास वहाँ पर मोमेंटम भी होगा। क्लियर है ना? सो दिस इज द प्योर फोटोनिक केस। तो इसकी हेल्प से आप देख सकते हैं कि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि किस कंडीशन में हमें न्यूटन मैकेनिक्स अप्लाई करनी होगी, किस कंडीशन में रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स अप्लाई करनी होगी, किस कंडीशन में हमें फोटोन की कंडीशन को अप्लाई करना होगा। दैट मीन्स रेडिएशन के कंसेप्ट अप्लाई करने होंगे। ये हमें इस डेरिवेशन से पता चलता है। अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने पहले भी आपको एक टर्म कराई थी कि जब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं, लॉरेंज ट्रांसफॉर्म करते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्म में हम देखते हैं कि फिजिकल लॉज आर इनवेरिएंट। फिर हम लॉरेंज में भी ऐसा ही करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से लॉज आपके इनवेरिएंट है या नहीं है। फिर उसमें हमने देखा कि लेंथ इनवेरिएंट नहीं है, उसमें हमने क्या चेंजिंग आई वो हमने निकालने की कोशिश की, टाइमिंग में क्या चेंजिंग आई वो हमने निकालने की कोशिश की। तो जब हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, रिलेटिविस्टिक केस की बात करते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर रिलेशन था जिसमें हमने देखा था कि वो आपका इनवेरिएंट आता है। वो रिलेशन आपका था आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। हमने देखा था कि आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, सेम एज this relation e square minus p square c square is also invariant under Lorentz transformation because the rest mass of the particle in each frame of reference will be same and the speed of light is also same in all frame of references. So we can say that using this relation the e square minus p square c square term will be invariant under Lorentz transformation or in all inertial frame of references. So in next video we will try to prove that this relation is invariant under Lorentz transformation. Okay, thank you for watching this video. Please subscribe and share, like in your friends. Okay, thank you.